حضرات محترم، دونوں ہاتھ سے پکڑنا ہے۔ آج کی محفل معراج النبی کانفرنس جس کی صدارت مفکر اسلام حضرت اللہ مولانا محمد نیاز صاحب قبلہ ممبر نور پر حضرت اللہ مولانا محمد رحمانی صاحب قبلہ غوثیہ مسجد کے خطیب و امام ممبر نور پر علم کلام کے مقدس چہروں کی زیارت کرتے رہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس خادم کو بھی حکم ملا ہے کہ آپ کے سامنے اجلت کشائی کر کے میں بھی فرشتوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کروں۔ نقابت کی دنیا کا شہنشاہ حضرت علامہ نیاز احمد صاحب خلیلی ناظم رضا خلیلی صاحب جو بہترین شعر و شاعری سے آپ کے دلوں کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بس اس شعر کے ساتھ اس محفل کا کام یہ کانفرنس اسی شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ جنزیر بولتی رہی در بولتا رہا، بولو بول کے سبحان اللہ۔ جنزیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو مہانی کا گھر بولتا رہا۔ جنزیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو مہانی کا گھر بولتا رہا۔ اور آئے گئے حضور سرے عرش بار بار، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ اور شاعر کہتا ہے شوکت شاہین تاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہین تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور تھام لے حمد رضا کا مسلک حق، تھام لے حمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور آ رہی ہے تربت مفتی اعظم سے صدا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خود میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خود میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ شوکت شاہین تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ حضرات محترم، اہل کمیٹی قابل مبارکباد ہے کہ آپ سب کو اکٹھا کیا صاحب صدر علامہ مولانا نیاز صاحب قبلہ
اور جتنے بھی ان کے رفتہ ہیں اور ہمارے ممبر کے جتنے بھی علماء کرام ہیں حضرات محترم، لیکن ذرا اور سوچو تو صحیح، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حضرات محترم، آج کی جو 26 تاریخ چاہتی ہو چکی ہے، اس کے بعد جو رات آئے گی وہ شب معراج کی رات ہوگی، جس رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی گئی۔ لیکن پیارے ذرا اور دیکھو تو صحیح، آج ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آج ہمیں جب بلایا جاتا ہے مسجدوں کے امام کو کہ ہمارے گھر میں بچہ نے تولد کیا ہے، آ کر کے آذان پڑھ دیجئے۔ امام صاحب آذان پڑھتے ہیں اور مبارکبادی صاحب میں پیش کر دیتے ہیں کہ مبارک ہو رسول اللہ کا ایک اور امتی تشریف لے آیا ہے۔ لیکن پیارے ذرا اور سوچو تو صحیح، آج آپ کو جو ہے مولانا نیاز صاحب نے بلایا، اعلان ہوا مسجدوں سے آج ذوق در ذوق لوگ چلے آئے، آج ہمارا کوئی مشقت اور پریشانی نہ اٹھانی پڑی۔ آج جب اعلان ہوا مولانا رحمانی صاحب نے آپ کو بلایا، آپ جو ہے چلے آئے، نور الاسلام صاحب نے بلایا چلے آئے، شاہ اہل سنت جو ہے جنید رضا اصلوی نے بلایا چلے آئے، سب جو ہے جو بھی علماء کرام اعلان کرتے رہے۔ آج سن کر کے کہ میراد النبی کانفرنس آج جو ہے جھنڈا چوک دوارا کی سرزمین پر ہے، لیکن پیارے ذرا آؤ نبی کونین کی مکی زندگی دیکھو، مکہ کی مقدس دھرتی ہے، پیغمبر اسلام نے بھی ایک اعلان کیا تھا، اس اعلان کو سن کر کے چھوٹے بڑے سب اکٹھا ہو گئے ہیں، جوان بھی آ گیا ہے، بوڑھا بھی آ گیا ہے، سارے کے سارے اکٹھا ہو گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، اے مکے والوں پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہونا تھا، مجمع سے سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو کر کہتا ہے، ہاں یا رسول اللہ، ہاں محمد ابن عبداللہ، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے صداقت کو منوا لیا، امانت داری کو منوا لیا، اللہ کے محبوب اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں پھر کیوں نہیں کہہ دیتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اتنا جیسے کہنا تھا، جو مکے کے لوگ کل تک امین کہتے تھے، جو مکے کے لوگ صادق کہتے تھے، جو اقرار کر رہے تھے، اب وہی دشمن بن جاتے ہیں، اب وہی سارے کے سارے راستہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ سامنے کا راستہ خالی ہو گیا ہے، دائیں دیکھا راستہ خالی ہو گیا ہے، بائیں دیکھا سارے لوگ چلے گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے قلب اتحاد کو تکلیف پہنچی، لیکن جب دیکھتے ہیں ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہے، 10 سال کا بچہ کھڑا ہے، اعلان کرتا ہے، اے محمد ابن عبداللہ، جب تک میرے جسم میں جان ہے، یہ جان محمد رسول اللہ پہ قربان ہے۔ جانتے ہو کہنے والا وہ بچہ کون ہے؟ کہنے والا وہ بچہ مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ مولا علی اعلان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سب میں ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ پیارے جانتے ہو زمانہ کون سے تھا؟ ابھی کسی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، نبوت و رسالت کا پہلا معاملہ ہے، بچوں میں سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا؟ یہ وہی علی شیر خدا کی ذات ہے۔ علی نے جیسے ہی کہا میں ساتھ دینے کو تیار ہوں، مشیت نے پکار کر کہا تھا، اے علی یہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ، ان کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، ان کا راستہ جو ہے بڑی مشکلاتوں سے گزرنا پڑے گا۔ علی شیر خدا کو مشیت نے کہا تھا کیا ساتھ دینے کو تیار ہو؟ مشیت نے جب پکار کر کہا، علی نے کہا میں تیار ہوں۔ کہا آپ کو جو ہے مصطفیٰ کے بستر پر لیٹنا پڑے گا، وہ بھی قبل نبوت کی رات ہوگی۔ کہا میں تیار ہوں۔ مشیت نے کہا تھا اے علی ان کے لیے آپ کو بیٹے قربان کرنے پڑیں گے۔ علی نے کہا میں قربان ہوں۔ کہا حسین دینا پڑے گا، کہا میں تیار ہوں۔ کہا حسن دینا پڑے گا، کہا میں تیار ہوں۔ کہا اکبر دینا پڑے گا، کہا میں تیار ہوں۔ کہا میں محمد دینا پڑے گا، کہا میں تیار ہوں۔ کہا عباس کے بازو کٹائے جائیں گے، کہا میں تیار ہوں۔ کہا سکینہ کو تھپڑ لگائے جائیں گے، کہا میں تیار ہوں۔ جب مشیت نے مکمل جو ہے جو پیمان کر لیا، اب میرے آقا نیچے آئے ہیں، آنے کے بعد علی کو اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، اور لگانے کے بعد یہی تو کہا ہوگا اے مکے والوں
कलमा पढ़ा, अब मुसीबतों ने पीछा ले लिया। यही एक मुसीबत नहीं आई, सारे तारीखें मक्का उठा करके देखिए, अल्लाह अकबर कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी है। आज हमने कलमा पढ़ा है, आज हम कितने इस्लाम के काम आते हैं। चाहे जरा तन्हाई में बैठ करके सोच करके बताना, अल्लाह अकबर मेरा नबी कॉन्फ्रेंस से जाने के बाद कभी घर की लाइट को बंद करके तन्हाई में कब्र का तसव्वुर करके यकीन करना हम इस्लाम के कितने काम आए हैं और कितना सहाबा किराम इस्लाम के काम आए हैं, कितनी मुसीबतें आई है कलमा पढ़ने के बाद। आज हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह अकबर, आज हम 5 वक्त के नमाजी बन जाते हैं, आज हमारी इज्जत की जाती है। आज हम कोई हाजी हो जाए, लोग रास्ता आज वो कुर्सियां छोड़ हाजी साहब आ रहे हैं, और कोई किस्मत का धनी हो जाए, हाफिज़े कुरान हो जाता है, लोग कहते हैं इज्जत करते नजर आते हैं। आज में दीन हो जाए, आज हमारी इज्जतें होती है। जरा सोचो तो सही, आज हमें दावत पेश की गई, आज मैं जब कोरोना भाई के साथ में आज जब आया हमारा बात जो है मौलाना रहमानी साहब ने किया है, मौलाना नियाज साहब ने किया है, मौलाना जुनैद साहब ने किया है। प्यारे देखो तो सही, आज कलमा पढ़ने के बाद इज्जतें मिलती है, कल कलमा पढ़ना अपनी गर्दन कटवाने के बराबर था। प्यारे कितनी मुसीबतें आई है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, कभी रास्तों में कांटे डाले जा रहे हैं, कभी ऊंट की ओझील डाली जा रही है, कभी गले में फंदा डालकर माशाअल्लाह हमें काबा में घसीटा गया है, अल्लाह अकबर आके बाहर आ गई है, कभी पत्थर मारे गए हैं, जिस पर हाथ किया गया है, कितनी मुसीबतें आई है। एक मुसीबत का तज़किरा करता हुआ से वो मुसीबत क्या है, शोबे अबी तालिब की घाटी का वाक़या है। 1 साल 2 साल नहीं 3 साल तक मुहासरे में रखा गया, समाजी बाइकाट कर दिया गया था और ये कह दिया गया था कोई न छुप के मिल सकता है न ज़ाहिर मिल सकता है। 3 साल तक घाटी में रखने के बाद अल्लाह अकबर दुनिया की पहली वो जेल थी जिस पर कोई छत नहीं है, जिस पर कोई फर्श नहीं है। ऐसी घाटी में रखने के बाद मुहासरा कर दिया गया, न खाने की कोई चीज है न पीने की कोई चीज है। अल्लाह अकबर जरा सोचो तो सही, शोबे अबी तालिब की घाटी में जब सहाबा के बच्चे धूप की शिद्दत से बिलखने लगे, तब माँ की दूध खुश हो गया था। आज कहा जाता है इस्लाम में औरतों का किरदार नहीं है। आज मामला ये होता है बनेगा बच्चा ही हाफिज़े कुरान बनेगा, बेटी आलिमा नहीं बन सकती, बेटी हाफिज़े कुरान नहीं बन सकती, वो दीन का काम नहीं कर सकती। अपने समाज से बुराइयों को खत्म करो और शोबे अबी तालिब की घाटी अपनी मंजर की निगाहों के सामने रखो। रब्बे काबा की कसम, वो शोबे अबी तालिब की घाटी में औरतों का किरदार क्या था। जब बच्चे माँ के फिरकते थे और कहते थे मेरी माँ भूख लगी है, रोते थे तो माए मुंह पे हाथ रखकर यही तो कहती थी, आए मेरे बच्चों तुम्हारा मर जाना गवारा है, इस्लाम बदनाम हो जाए गवारा नहीं है। आहिस्ता रोया करो, तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी तो दुश्मन कहेंगे आप कहीं रहम की भीख मांगेंगे, आप बच्चे कलमा छोड़ देंगे, अब इस्लाम कमजोर हो जाएगा। लेकिन नहीं प्यारे, ऐसे मुश्किलात में माओ ने किरदार अदा किया था। तो नौजवानों, आज मेरा नबी कॉन्फ्रेंस से ऐसा पैगाम करके उठना, जो जवान शराब पी करके बीवियों को थप्पड़ लगाते हैं, जो जवान शराब पी करके अपने माँ बहन को गलियां करते नजर आते हैं, जो जवान शराब पी करके आज बूढ़े माँ बाप को घरों से बाहर निकालते हैं, जो नौजवान जो है अपने पड़ोसी को शराब के नशे में गालियां बकता है। आज नौजवानों जरा सोचो तो सही, क्या यही किरदार था जो मदीने वाले ने हमें दिया था? क्या यही इस्लाम था जो मदीने वाले ने हमें पहुंचाया था? क्या यही इस्लाम था जो गरीब नवाज लेकर के हमें आए थे? नहीं प्यारे, ये शराब जिसका आदि आज नौजवान बनता जा रहा है। कोई शराब को हराम को समझता है, कहता है बियर पी ले मौलाना, उसमें तो जूस है, कोई नशा नहीं है। कैसे कैसे बहाने तलाश किए जा रहे हैं। आज नौजवानों जरा सोचो तो सही, कौन नहीं मानता हुसैन आजम का? जरा हाथों को उठा करके बताओ, हुसैन को मानते हो या नहीं? नारे हैदरी लगाते हो नहीं? हाथों को लहराना और हाथ को नीचे न करना। रब्बे काबा की कसम, यही तो शराब थी जो करबला में हुसैन के खानदान को बर्बाद किया था। यही तो शराब थी, यही तो शराबी थे जिन्होंने मासूम असगर को नेता बनाया था। यही तो शराब थी जो मोहम्मद के बाजू को
हुसैन के गला का काटने वाला यही शराबी थे। करबला में शराब ने अहले सादात के खानदान को उजाड़ा था और यही शराब तुम्हारे घर को उजाड़ रही है। और करबला वालों को गवाह बना करके सच्ची तौबा करके उठना। मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस से रब्बे काबा की कसम, मुस्तफा भी गवाह होंगे, फरिश्ते भी शाहिद होंगे। और तौबा कर लो कि आज से शराब जैसे नजिश को हम मुंह के करीब नहीं लगाएंगे। इसके बाद जो महीना आने वाला है, प्यारे रोजा को इंसान रखता है, लेकिन कोई ऐसा रोजेदार अब तक नहीं मिला है, नाज़िम साहब की मिला, कोई ऐसा रोजेदार नहीं मिला है जो ये कहे अंदर जा करके खा ले और बाहर आकर के कहे हम रोजा से है। अगर रोजा है तो पक्का कह देता है। मैंने पूछा रोजेदार से, हमें तसव्वुर ने ये कैसा यकीन है? जब तू शराब के अड्डे पे लाइन लगाता है, सोचता है भाई नहीं देख रहा है, सोचता है बहन नहीं देख रही है, सोचता है बीवी नहीं देख रही है, सोचता है माँ नहीं देख रही है, सोचता है पड़ोसी नहीं देख रहा है। प्यारे जब रोजा रखता है यकीन है छिलके नहीं खाता कि मेरा खुदा देख रहा है। तो शराब को मुंह से लगाने से पहले उस बोतल जब हाथ में आए, खौफे खुदा दिल में ला कि मेरा भाई ना देखे, मेरी बहन ना देखे, लेकिन मेरा परवरदिगार जिसने हमें पैदा किया है वो परवरदिगार आलम हमें देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन प्यारे आज तो हमारा हाल ये है कि आज जब स्टेज से मामला आता है, नौजवान बीच से खड़े होकर के आज हम इसमें पड़ गए हैं, ये जिंदाबाद हो जिंदाबाद। प्यारे ये जिंदाबाद हो जिंदाबाद रहे। आज जो है पड़ोसी हमसे परेशान है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आज जो है गरीबों को हम सताते हैं, कहते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आज बेवाओं को हक हम मारते हैं, कहते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आज जो है भाई को हम मारते हैं, कहते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद। माँ की जो है खिदमत नहीं है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अरे मसलके आला हजरत जिंदाबाद तुम्हारे कहने से नहीं है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पहले माँ की खिदमत कर, फिर के मसलके आला हजरत जिंदाबाद। पहले पड़ोसी के हुकूक अदा कर, फिर तो मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अरे क्या है मसलके आला हजरत? यही तो है जो इस मसलब से मिल गया है, वो कभी किसी वली की गुस्ताख हुआ ही नहीं है। वो जब भी अदब से नाम लिया है तो यही तो कहा है इनके राजा मेरे खाजा है, महबूबे इलाही हमारे हैं, नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी हमारे हैं। प्यारे मसलके आला हजरत का मतलब यह है कि जो मसलके आला हजरत कहते कि हम पक्के गज़बी हैं, समझ लो कि अल्लाह वालों का सच्चा वफादार सिपाही बनकर के खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज क्या हमारे हालात हैं? शोबे भी तारीफ की घाटी, सहाबा के दौर सूख गए हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मेरे सहाबा जाओ, कुछ सब्जी वगैरह खरीद कर लाओ, बच्चों को भी खिलाओ, तुम भी खाओ। गए हैं सहाबा, वाह दुश्मन भी बड़े अजीब थे, पहले से सारी सब्जियां बिक चुकी हैं, खरीद चुके हैं। सहाबा आए हैं, सब झुका करके खड़े हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सब्जी नहीं मिले, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पहले ही बिक चुकी है। दूसरा दिन गुजरा, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जो सड़ी हुई सब्जियां होती वही लेकर के आओ। अल्लाह अकबर, आज गए हैं, आज वो भी सब्जियां मैसर नहीं है। कितनी मुश्किल की वो घाटी थी, ऐसी मुश्किल की वो घाटी में अल्लाह के महबूब ने जब पूछा सहाबा आज कुछ भी नहीं मिला, सर झुका करके कहा था या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है। अल्लाह के महबूब ने ऐलान किया था आए मेरे सहाबा, जिसे जाना चाहते हो जा सकते हो, मेरी तरफ से आजाद हो, कम से कम तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे, वो इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। तो सहाबा ने बैक ज़बान कहा था या रसूल अल्लाह, हम अपना तन मन धन सब मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर सकता हो, लेकिन दामने मुस्तफा छोड़ करके नहीं जा सकता हो। हम इस जमाने में खड़े
रहे हैं क्या नहीं, अंदाजा लगाओ। एक दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं पलट करके, जैसे ही नजर पड़ी है सबसे पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा को उसके ऊपर नजर पड़ी है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, खदीजा आज बेटियां नजर नहीं आ रही है, मेरी बच्चियां कहाँ है? बाप को बच्चियों से कितना प्यार हुआ करता है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, खदीजा आज बच्चियां नजर नहीं आ रही है। अल्लाह को इतना कहना था, सैयदा खदीजा ने अर्ज किया था, मेरे सरकार बच्चियां कई दिन से भूखी है, बच्चियों के होठ सूख गए हैं, जिस्म कमजोर हो चुका है। अल्लाह अकबर, आए लोगों, मेरी माँ बहनों, तुम भी प्रोग्राम में आए हो, गौर करो, आज तुम्हारा बच्चा इस्लाम के कितने काम आ रहा है। और देखो शोबे अबी तालिब की घाटी, जब अल्लाह के महबूब की बीवी ने कहा था कि मेरे सरकार बच्चियां भूखी हैं, मैंने चाहा कि आप तबलीग इस्लाम करके आए हैं, थके हारे परेशान है, बच्चियों के सूखे होठ देखेंगे आपको परेशानी पड़ जाएगी, इसलिए बच्चियां कमर के पीछे छिपी हुई है। इतना कहना था, अल्लाह के महबूब की आंखें भीग जाती है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, आज खदीजा बच्ची फातिमा को तो ले आओ। अब फातिमा ज़हरा बाहर आई है, अल्लाह के महबूब ने फातिमा को सीने से लगाया, कहा बेटी फातिमा क्या हाल है? अल्लाह के महबूब की बेटी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह भूख बहुत लगी है, प्यास की शिद्दत ज्यादा है। अल्लाह के महबूब ने हाथ थामा और कहा बेटी चलो चलो, बेटी को लेकर के चले हैं। अल्लाह के महबूब ने लेना कहा, अरे बेटी फातिमा चलो, अबू चल, बेटी फातिमा चलो, अबू जहल से कुछ लाएंगे, उतना से कुछ लाया जाएगा, उनसे कुछ की उम्मीद की जाएगी, लेकिन नहीं। पैगंबर इस्लाम चलते रहे, एक बात के करीब पहुंचते हैं, अल्लाह के महबूब बैठ जाते हैं, अपने नबूवत वाले हाथ से दरख्त के पत्ते उठाना शुरू कर देते हैं, पत्ते उठाते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, वो अल्लाह के महबूब नबूवत वाले हाथों से पत्ते उठा रहे हैं, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, हाथ जिस्म उठे खड़ी कर दिया, मैंने तुझे रफात के रास्ते चला। पत्ते उठा करके आका फातिमा की झोली में डाल देते हैं। अब फातिमा की झोली में डालना था, अर्श आज़म के फरिश्ते चीख उठे थे, फरिश्तों ने यही तो कहा था, आए बारे इलाहा, ये किसी और की बेटी नहीं, तेरे महबूब की बेटी है। बनी इस्राइल की उम्मतों ने मांगा था, मन्नो सलवा भेजा गया था, आसमान से खाने नाजिल हुए थे, जन्नत से खाने भेजे गए थे। या रसूल अल्लाह बोला, मुझे हुक्म दे दे, मैं भी जन्नत से खाना ले जाऊं, तेरे महबूब की बेटी भूखी है। आए मेरा नबी कॉन्फ्रेंस में आए वाले देखो नवाब के भाइयों मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्ते फातिमा की और फातिमा के सामने रखा है। अल्लाह अकबर, फरिश्तों ने जब ये कहा था, अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, और नबी ने उसका मुआवजा मांगा है। देखो मेरा महबूब चाहता क्या है। अल्लाह के महबूब ने कहा था, आए बेटी फातिमा, इन पत्तों को खा करके अपनी भूख को मिटा लो। इतना कहना था, रब्बे काबा की कसम, फरिश्ते की चीख निकली थी, और अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने कहा था, तेरा महबूब की बेटी भूखी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया, आए फरिश्तों, देख जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, देखो मेरा महबूब चाहता क्या है। अल्लाह अकबर, अब नबी के नबूवत वाले हाथ उठे हैं, जब आए मुकद्दस हिले हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, आए बारे यहाँ, अगर फातिमा के दूध के बदले अगर कुछ देना चाहे तो इतना दे देना कि मेरी गुनहगार उम्मत को जन्नत का परवाना कर देना। अल्लाहु अकबर, मेरे गुनहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता कर देना। अल्लाहु अकबर, जरा सोचो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। आज हमने भी कलमा पढ़ा है, आज हमने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, कोई मुश्किलात नहीं आई। आज कमेटी के लोग पहुंचते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस चला रहा हूँ, चंदे की जरूरत है,
अल्लाह अकबर, ऐसा हम मुंह बिगाड़ते हैं, लगता है कि इस्लाम से हमारा कोई लेना देना ही नहीं रह गया है। प्यारे याद रखो, आपका ये पैसा फजूल नहीं, बल्कि जलसे की कामयाबी ये नहीं है कि भीड़ इकट्ठा हो जाए, जलसे की कामयाबी ये नहीं है कि अल्लाह बड़े अच्छे खतीब आ गए हैं, जलसे की कामयाबी ये नहीं है कि आप सब इकट्ठा होकर के इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर लिया है। मैं तो कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूसियत के साथ अल्लामा मियां साहब को, इसलिए जलसे की कामयाबी ये है कि कल बरोज़े महशर जब फरिश्तों की जमाअत साथ हो, मैदान महशर कायम हो और मुनादी निदा करे कि बवाना के चौक झंडा पर जो मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो जो शिरकत किया था वो कहाँ है, खड़े हो जाए। यही हमारी जमानत है कबूलियत की कामयाबी की कि अल्लाह की बारगाह में हमारा नाम शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या इलाही पाक काबा फिर वही पैगाम दे, सारी दुनिया को मुकम्मल दावत इस्लाम दे। इंसानी खता की बुनियाद पर जो भी लर्जिशें हो गई हों, अल्लाह की बारगाह में मैं सच्ची तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे पाक का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।